Hare Krishna. So we're very delighted to be here today, and it's a great fortune for us to be here. And as Prabhuji said, we're going to take you to Vrindavan without ticket, without reservation, no security check. And everything that we see in Vrindavan, we're seeing nowadays, we're seeing by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Because he visited Vrindavan and he personally revealed Radhakund and Shyamakund before the eyes of the world. And then he sent the 6 Goswamis there to excavate and find all the lost holy places. So everything we see is by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So we have a beautiful bhajan about Lord Chaitanya. Now because we're Gaudiya Sampradaya, most of our bhajans are in Bengali. Especially if it's about Lord Chaitanya, it has to be in Bengali. But this bhajan is about Lord Chaitanya. It's not even in Hindi actually, it's in Brijvasa, the language of Braj. And it's very simple. You'll learn in 2 seconds and chant with us, the part that comes again and again. And very beautiful Braj Rag also to this song. So first of all, if you have your devices, we request you to put them all on silent, because these little babies have a habit of crying in the middle of the katha. And then you can search for Sundara Lala, or some places it's Sundara Bala, one of the two you'll find. But Bala and Lala both mean the same thing. Oh, there you are, okay. Sundara Lala Sachidu Lala Nachata Sri Hari Kirtana Me. Sundara Lala Sachidu Lala Nachata Sri Hari Kirtana Me. Sundara Lala Sachidu Lala Nachata Sri Hari Kirtana Me. Palle Chandana Tilaka Manohara Alaka Shobhe Kapolana Me. Palle Chandana Tilaka Manohara Alaka Shobhe Kapolana Me. Bolo Sundara Lala Sachidu Lala Nachata Sri Hari Kirtana Me. Bolo Sundara Lala Sachidu Lala Nachata Sri Hari Kirtana Me. Shire Juda Darshani Rade Manapula Mala Iya Padove. Shire Juda Darshani Rade Manapula Mala Iya Padove. Pahirna Pita Patamara Shove Nupura Rudunu Charanana Me. Pahirna Pita Patamara Shove Nupura Rudunu Charanana. Bolo Sundara Lala Sachidu Lala Nachata Sri Hari Kirtana Me. Bolo Sundara Lala Sachidu
लाला नाचत श्री हरि कीर्तन में राधा कृष्ण एक तनु है निर्गुण माजे बंसी बजावे एक तनु विश्व रूप की प्रभु जी साही आवत प्रकट ही नरिया में बोलो सुंदर लाला सजीव लाला नाचत श्री हरि कीर्तन में बोलो सुंदर लाला सजीव लाला नाचत श्री हरि कीर्तन में कोई गावत है राधा कृष्ण नाम कोई गावत है हरि गुण गान राधा कृष्ण नाम कोई गावत है मृदंग ताला मधुर रसाला बजाता है कोई रंगन में बोलो सुंदर लाला सजीव लाला नाचत श्री हरि कीर्तन में बोलो सुंदर लाला सजीव लाला नाचत श्री हरि कीर्तन में बोलो नाचत श्री हरि कीर्तन में बोलो नाचत श्री हरि कीर्तन में बोलो श्री सच्चिनंदन गौर हरि सुंदर लाला सची दुलाला नाचत श्री हरि kirtan. 500 years ago, when Lord Chaitanya appeared, he was very beautiful, sundar. Just like if you come to our Krishna Balaram Mandir in Vrindavan, our deities are Radha Shama Sundar. But Chaitanya Mahaprabhu, he was not Sham Sundar, he was Gaur Sundar. He was very beautiful, golden complexion. The golden avatar of love. Sundar Lala. In Braj, when we want to call a little boy, then we say, "Oh Lala, come here Lala, Aja Lala." If we want to call a young girl, "Oh Lali, come here Lali, Aja Lali." So he was a very beautiful boy. And whose boy was he? Whose boy was he? Sachi Mata. So we call him Sachi Nandan or Sachi Dulala. Sundar Lala, Sachi Dulala. Okay. So Sundar Lala, Sachi Dulala. और उसका जन्म हुआ फाल्गुन पूर्णिमा, जो अभी लगभग 10 दिन में आने वाला है, चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन। और एक नीम वृक्ष के नीचे इसका जन्म हुआ, तो इसका
नाम लगाया निमाय। और उसके पिताजी का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्र। मिश्र मीन्स ब्राह्मण। सो इसका नाम हो गया निमाय पंडित। क्या नाम? पंडित। And he appeared on the Falgun Purnima night. Now somehow or other, on that particular 539 years ago, it'll be this time, that particular Purnima night, there was Chandragrahan. Now we heard Chandragrahan is very inauspicious. So why Mahaprabhu's birth was on a Chandragrahan? Because, especially in Bengal, when there's moon eclipse or solar eclipse, सब लोग जाते ये गंगा के पावन तट पर और स्नान करके और बड़ी स्वर से कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ठीक उसी समय जब पूरा ब्रह्मांड ये नाम संकीर्तन में निमग्न था, ठीक उसी समय चैतन्य महाप्रभु का जन्म। ये थोड़ा इशारा करते थे कि इसका अगली काम क्या होगा। लेकिन एक प्रवचन में प्रभुपाद जी ने कहा कि एक दूसरा कारण भी है। तो अभी हमने सुना कि चैतन्य महाप्रभु दूसरा नाम है गौर सुंदर, इसके दूसरा नाम है गौरचंद्र। सो ये साधारण चंद्र ने सोचा जब इतना सुंदर गौरचंद्र आ रहे, ये साधारण चंद्र के क्या काम है, इसके मुंह छिपा दिया। जब इतना सुंदर गौर चंद्र आ रहा है कि ये साधारण चंद्र के क्या काम है, मुंह छिपा दिया शर्म से। इसलिए चंद्र ग्रहण था। और ये पुष्टि है चैतन्य चैतन्यमृत का आदि लीला में एक श्लोक है, आकलंक गौर चंद्र दीला दरसाना सकलंक चंद्र की प्रयोजन। This is Bengali, huh? Akalank. Hindi wala ka na. Akalanka Gaurachandra, Dila Darasana, Sakalank. That spotted moon, Sakalanka Chandra, Kipriya. What is the use of that? Sadaran Chandra. इसलिए चंद्र ग्रहण लगा था चैतन्य महाप्रभु का जन्म पर। हरे कृष्ण। Oh, that already had nice Braj melody. At the end, we'll sing nice Braj. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Sayam Rupa Kadamayam Dadati Swaparandhiyam. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Panchakalpatrubhyascha kripa sindhubhaivacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. तो अभी चैतन्य महाप्रभु के जन्म के बारे में हमने बात किया, तो फिर आज हम जाएंगे एक जगह है ब्रज में गोकुल, जहाँ भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का जन्म। अब शायद आप किसी मथुरावासी से पूछ लेंगे, वो सब बताएगा कि मथुरा में इसका जन्म हुआ। तो किसी ब्रजवासी से पूछ लेंगे तो वो बताएगा कि इसका जन्म हुआ गोकुल में। उसके बारे में श्रील जीव गोस्वामी का गोपाल शंभू का प्रमाण है, और कवि कर्णपुर का
आनंद वृंदावन चंपू में प्रमाण है। उसके बारे में हम विचार करेंगे। तो बहुत पहले एक राजा था मथुरा में, इसका नाम था देवमिदा। एंड देवमिदा के दो पत्नियां थी। एक क्षत्रिय थी जो स्वाभाविक है, वो क्षत्रिय है, और दूसरा पत्नी वो वैश्य थी। तो वो भी ठीक है क्योंकि हम नीचे हम शादी कर सकते, ऊपर नहीं कर सकते। और ये क्षत्रिय पत्नी से इसका बच्चा आया, पुत्र आया। Vasudeva's father's what name? Since COVID, sometimes my memory goes. Huh? No, that's brutally that. Just now my mind went blank. Anyway, Inka Putra tha Vasudev. Or Surasen. See, इसका पुत्र था सुरसेन और इसका पुत्र था वसुदेव। और ये जो दूसरा ये वैश्य पत्नी से इसका जन्म हुआ पर्जन्य महाराज। और जीव गोस्वामी बताते हैं कि क्योंकि वो वैश्य स्त्री से जन्म दिया तो वो गोपों का राजा बन गए और उसका राजधानी बनाया जमुना पार करके गोकुल में। क्योंकि गोपों का राजा था, सो इनके पास 9 लाख गाय थी, लगभग 1 मेगाबाइट। तो इसके स्थान का नाम हो गया गोकुल। और इनके 5 पुत्र थे, उपनंदा, अभिनंदा, नंदा, सुनंदा एंड नंदन। आप देख सकते हैं नंद महाराज वो बीच में था, पूरा बीच में। और पास के गांव में एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गोप था, सुमुख। और सुमुख का बहुत प्रिय पुत्री थी यशोदा। देखो ये जो प्राचीन ब्रजवासी है, इसका बहुत सुंदर नाम है यशोदा, यश देने वाली। राधा रानी का माता जी का नाम है कीर्तिदा, कीर्ति देने वाले। वृषभानु का माता जी का नाम है सुखदा, सुख देने वाले। ये सब जो प्राचीन ब्रजवासी थे वो सब देने वाले थे। अभी ये सब देने वालों चले गए, उन्हीं लेने वालों रह गए। और ये देख कर के यशोदा और नंद का गुण बहुत मैचिंग था, तो इसका विवाह अनुष्ठान हो गया बड़ी धूमधाम से। और पर्जन्य महाराज, पर्जन्य का मतलब मेघ, क्योंकि बादल के जैसा इसका गुण था। बादल ये सागर से पानी लेते हैं और फिर बारिश के रूप में वो वापस देते पूरा ये पहाड़ में, सब जगह में। और ये सब everyone is nourished by that water and it goes back into the sea. So पर्जन्य महाराज वो टैक्स लेते थे सब प्रजा से, लेकिन वो वापस बहुत से beneficial works जो ये प्रजा के लिए, इसलिए इसका नाम था पर्जन्य महाराज। जब पर्जन्य महाराज थोड़ा बूढ़ा हो गया, परंपरा के अनुसार उसके ज्येष्ठ पुत्र उपनंद को ये राजा सौंपा दिया। Upananda became the king of the cowherds. लेकिन थोड़ी देर बाद उपनंदा एक बैठक बुलाया, एक मीटिंग। हमारे अमेरिका में एक ऋषि है, इसका नाम है मर्फी। मर्फी बताते हैं that a meeting is an event where minutes are kept and hours are lost.
Anyway, Parjanya Maharaj, excuse me, Upananda एक बैठक बुलाया सब गोपों का। और इस बैठक में वो नंद महाराज के गुणगान गाने लगे। ऐसे गुणगान गाने लगे, ऐसा लगता था कि उसका पांच मुख था। और नंद महाराज ये सुनकर उसके वो शर्म से उसके सिर नीचे चले गए। और फिर ये उपानंद एक प्रस्तावना किया ये मीटिंग में कि वास्तव में नंद महाराज हमसे गुण रहे तो वो हमारा राजा बनना चाहिए। ये बहुत आश्चर्य की बात है। अक्सर हम देखते हैं कि ये ज्येष्ठ पुत्र वो राजा बन जाते हैं और ये सब इनके सारे सारे छोटे भाई वो कुछ प्रकार का षड्यंत्र बनाते इसको मारने का। वो जानते कि वो षड्यंत्र कर रहे तो वो भी कुछ षड्यंत्र बना रहे कि इसके बाद सारे भाई को मर जाएगा। ऐसे कई साल पहले हमने देखे नेपाल में सब खत्म हो गया। सो हम ये देखते कि ये लेकिन कि ये ज्येष्ठ भाई ये छोटे भाई को राजा बन जाए ये कभी नहीं देखते। लेकिन ब्रज इज वेरी मैजिकल प्लेस। ऐसा हो सकते है ब्रज में। और ये प्रस्तावना सुन करके unanimously, how do you say unanimously in Hindi? हाँ? सर्वसम्मति ये रेजोल्यूशन पास कर दिए कि नंद महाराज हमारा राजा बन जाए। और सब लोग बहुत खुशी था इस रेजोल्यूशन से। हमारा जीबीसी अगर ऐसे रेजोल्यूशन बना सकता था कि सब लोग प्रसन्न था वो भी बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन ये ब्रज इज मैजिकल प्लेस, ऐसा हो सकते हैं ब्रज में। सो नंद महाराज ये राजा बन गए और यशोदा रानी। और नंद महाराज और यशोदा रानी का राज्य में किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं था किसी का। सब लोग बहुत प्रसन्न था नंद और यशोदा के राज्य में। केवल एक ही दुख था कि सब ब्रजवासी के हृदय के ऊपर आते थे कि नंद और यशोदा का कोई इशू नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। बहुत समय बीत गए लेकिन नंद यशोदा का कोई पुत्र नहीं आया। कभी कभी ये प्रजा लोग बताते हैं कि ऐसा व्रत रखना है, ऐसा देवी देवता का पूजा करना है, ऐसा यज्ञ करना चाहिए। तो नंद महाराज इनका केवल श्रद्धा था इनके शालिग्राम महाराज के ऊपर। वो अगर शालिग्राम महाराज चाहते हैं कि मेरा पुत्र होगा, पुत्र होगा, अगर नहीं चाहते तो नहीं होगा। लेकिन उसके प्रजा प्रसन्न रखने के लिए कभी कभी ये देवी देवता का पूजा करते थे, कभी कभी ये व्रत रखते थे, कभी कभी ये यज्ञ करते थे, लेकिन कोई पुत्र नहीं आया। एक दिन की बात है, एक बहुत विचित्र स्त्री ब्रज में आया। बहुत बुरी थी, बहुत सुंदर सुंदर श्वेत का चोटी थी और गेरुआ रंग का वस्त्र पहनी थी जैसे कोई साध्वी थी। और इनके हाथ में दो बच्चा लोग थे, एक लड़का एक लड़की जो इनका ग्रैंड चिल्ड्रन थे। और ये विश्वासीगण साधुओं और साध्वी के ऊपर बहुत श्रद्धा रखते हैं। ये सब साधुगण सुबह सुबह जाते थे सब विश्वासी के घर पे कि हरि बोल रोटी दो, राधे श्याम मधुखरी, राधे श्याम मधुखरी। और बहुत सुंदर रोटी मिलते हैं। और ब्रज में ये रोटी हम इससे नहीं बनाते, जैसे हमारे गुजराती मित्र ऐसा बहुत ही पतली रोटी बनाते हैं इससे, लेकिन ब्रज में ऐसा बनाते रोटी बहुत very thick with homemade ghee or butter on top. They get nice roti or saag or dal, sabji, सब कुछ मिलते हैं। घर घर जाके थोड़ा सा लेते हैं, इधर से थोड़ा सा लेते।
तो ये ब्रजवासीगण ये माता जी के चरणों में गिर पड़े और उनसे पूछा कि आप कहाँ से आया, आप कौन है और क्या चाहते हो। और माता जी ने कहा कि मेरा नाम है पूर्णमासी, मैं अवंतीपुर उज्जैन से आया, और मैं संदीपानी मुनि का माता जी है और ये इनका पुत्र है और पुत्री है, मधुमंगल और नंदीमुखी। और मैं ज्योतिषी में बहुत निपुण है और मैंने विचार किया, अध्ययन किया कि बहुत ही जल्दी नंद और यशोदा का पुत्र होगा। क्या बताया कि नंद और यशोदा का पुत्र। सब लोग सोचते कि पुत्री हुआ, लेकिन गोपाल शंभू और नंद वृंदावन शंभू वो बताया कि एक पुत्र होने वाला है। और ये घटना हम देखना चाहती हूँ, तो एक फार्नकुटी बनाओ जमुना के तट पर, जिससे हम ये घटना को देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। सो पूर्णवासी के लिए बहुत सुंदर फार्नकुटी बनाया और नंदमुखी के और मधुमंगल के साथ वहां रहने लगे। एक दिन की बात है, वो नंद और यशोदा के पास आया जब वो दोनों अकेले थे, और पूर्णमासी ने बताया कि देखो, अगर आपके इच्छा है पुत्र, फिर ये सारी एकादशी एक साल तक बहुत ही सावधानी से ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसे व्रत, ये एकादशी व्रत बहुत सावधानी से रखना चाहिए, एक पूरे एक साल। तो एक साल में कितने एकादशी होते हैं? 24। इस साल कितना होगा? इस साल अधिक मास आने वाले है, तो 26 एकादशी होगी इस साल। क्योंकि विश्वासीगण ये सब गोप है, ये they don't necessarily follow एकादशी। अब ये लोकनाथ स्वामी का यात्रा में जाएंगे कार्तिक में, आप देख सकते हैं ये एकादशी के दिन भी ये रोटी बना रहे। सो वो बताया कि पूरे एक साल बहुत सावधानी से ये सब एकादशी व्रत कर रखते हैं, और एकादशी व्रत नहीं रखता तो आप ये सब ऋषि भक्तगण से आप सीख सकते हैं कैसे एकादशी का व्रत रखना है। पूरा व्रत नहीं रखना, केवल फलाहार प्रसाद आप ले सकते हैं। आप ये सब ऋषि भक्तगण से आप सीख सकते हैं, क्योंकि अभी आप देख लेंगे कितना शक्ति है एकादशी का व्रत रखने में। सो नंद यशोदा पूरे एक साल तक बहुत सावधानी से एकादशी के व्रत रखते थे। और इस साल के दौरान बहुत सी विचित्र घटना होने लगे। नंद बाबा कभी कभी वो वापस पूरे ये गाय को चराते चराते जाते थे, और फिर शाम को वापस आते थे और बैठ जाते थे और ये टीवी ऑन कर देते थे। नो, आप लोग करते। क्योंकि पहले लोग शाम को रामायण का पाठ करते थे, महाभारत का पाठ करते थे। अभी ये एडवेंट हो गया टीवी, और सब लोग उसका समय के पूरा नष्ट कर देते। अमेरिका में वो पहले कहते थे इसको बूब ट्यूब, पहले it was one big tube, now the digital camera, digital screen has come, boob tube। और बहुत से लोग फेंक दिया अपने घर से, क्योंकि उनको पता लगा कि हमारा आपस में कोई बात नहीं होती, सब लोग तो केवल टीवी के सामने बैठे हैं, ये कमर्शियल आते थोड़ा सा बात होते हैं, फिर योगियों के ज्यादा ध्यान से देखते हैं। पुराने जमाने में लोग रामायण का पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे, ये पुराणों पढ़ते थे। तो नंद बाबा कभी कभी रामायण का पाठ करते थे। तो ही ब्रज में अब जाएंगे, ये गांव में ये सब लोग बताएंगे राम राम जी, राम राम भाई। क्योंकि ये ब्रजवासी के लिए कृष्ण हमारा लाला है, भगवान तो राम है। ये गांव में जाएंगे, राम राम जी, राम राम भाई।
हाँ? और पढ़ते नंद बाबा देखा कि माँ यशोदा रसोई में ये रोटी और दाल बना रही थी, दाल रोटी खाओ, राधा कृष्ण गुना गाओ। हाँ? और आपके आंख के कोने में देखे कि माँ यशोदा के गोद में एक बहुत सुंदर श्याम वर्ण का लाला बेटे, और नंद महाराज देखते हैं कुछ नहीं। और माँ यशोदा ये दाल और रोटी बना रही थी और देखा कि नंद बाबा के गोद में बहुत सुंदर, जैसे नील कमल का समान लाला इसके गोद में बैठे थे, बहुत सुंदर कमल का दल का समान आंखें है, गुंगली वाले केश है। हाँ? और फिर माँ यशोदा देखते हैं कुछ नहीं है। कभी कभी घर पे वो देखते ये लाला दौड़ते थे, ये देख लेते थे कुछ नहीं है। ऐसे घटना होने लगे पूरे 1 साल तक। और एक दिन की बात है, वो माघ महीना विशेष रूप उत्तर भारत में बहुत ठंड है। हाँ? जैसे पिछले साल हम कुंभ, बहुत सुंदर कुंभ मेला बनाए, इसमें हम 1 लाख पूर्ण थाली का प्रसाद दे दिए रोज सब लोगों को। सब लोग बहुत ठंडा स्नान करते थे गंगा और जमुना में। इस ठंडी महीने का माघ महीने में। जो माघ महीना था बहुत ठंडा था, वास्तव में वो माघ पूर्णिमा था। और नंद बाबा बहुत सुंदर गरम गरम रजाई के नीचे सो रहे थे। और माँ यशोदा एक बहुत गरम रजाई के नीचे सो रही थी। और नंद बाबा का स्वप्न हुआ। इस स्वप्न में नंद बाबा ने देखा कि इनके हृदय में एक बहुत सुंदर जैसा नील musk, what do you say? Anyway, musk you know, blue musk, very beautiful बच्चा है, और बहुत सुंदर कमल दाल के समान आंखें है, गुंगरी वाले केश है, बहुत सुंदर हाथ और पाँव है, छोटी छोटी अंगुली है, बहुत सुंदर रेखाएं हैं। और नंद बाबा देखते देखते ये बच्चा वो उनके हृदय से और ये कमर को पार करके माँ यशोदा का हृदय में स्थित आया। जब माँ यशोदा के हृदय में आया तो फिर नंद बाबा का स्वप्न टूट गए और वो बैठ गए। उसके पूरे शरीर में कंपन हो रहा था कि सारे रोमांच होने लगे पूरे शरीर में, आंसू बहने लगे। और नंद बाबा देखे कि माँ यशोदा वो भी बेटी है और उसका शरीर में कंपन हो रहा है और उसका आंसू आंखों से आंसू बह रहा था, उसका सारे रोमांच था। और नंद और यशोदा बहुत they're so excited they can't even talk, बात नहीं कर सकते। नंद बाबा बोला मैं 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 और माँ यशोदा बोल तू 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 and बाबा बोला हाँ हाँ, and माँ यशोदा said मैं and नंद बाबा said तू दोनों के एक ही स्वप्न एक ही समय बात नहीं कर सकते, लेकिन दोनों का पता होने लगे। और ठीक उसी समय से माँ यशोदा का शरीर में ये लक्षण होने लगी कि वो बच्चे के साथ है। और ये सब जितनी भी बुढ़िया है पूरे गांव में वो सब पता लगा, क्योंकि अमेरिका में we have one saying that you can fool all of the people some of the time, you can feel some of the people all of the time, but you can't fool mom. So ये सब माटी लोग पता लगा कि ना माँ यशोदा बच्चे के साथ है। फिर सब लोग बहुत उत्साह हो, ओ प्रतीक्षा नहीं कर सकते जब कब बच्चा आएगा। सो धीरे 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 माँ यशोदा बहुत मोटी होने लगी। और पुराने जमाने में हम हॉस्पिटल के पास नहीं जाते थे, हम ये कंपाउंड में एक मकान था जो श्रुति घर कहते थे और एक कमरा था श्रुति घर।
हाँ? और एक नाई आती थी, क्योंकि वो सब नाई वो सब कुछ जानती थी। हॉस्पिटल जाने की कोई आवश्यकता नहीं था। मैंने एक लेख पढ़ा कि अभी ये मिडवाइफ, ये घर पर बच्चा देने वाला देना वो भी वापस आ रहा है। मेरा लड़की वो भी घर पर हुई, और जो नेचुरोपैथिक डॉक्टर ने उसको जन्म असिस्ट किया, इसका बहुत फनी आवाज था। और वो लगे, yeah, in my lifetime, 500 babies. I've delivered 500 babies. Only one time we went to hospital. Is it a disease? Is it a disease? You got to go to the hospital? It's the most natural thing going on all day long, all over the world. What's the use of going to the hospital? Only 500 babies. One time we went to the hospital. And my daughter's very happy and healthy, and her daughter also born at home, very happy and healthy. So माँ यशोदा ये प्रसूति घर में हम रहने लगे नाई के साथ। एक दिन के बाद वो भद्र मास का कृष्ण पक्ष अष्टमी आया था। और ये नाई किसी काम के लिए किसी एरंड के लिए वो बाहर निकला। और जब बाहर थी वो सोचने लगी वो थोड़ा नींद ले लूंगा। I will take a snap. Somewhere between a sleep and a nap is a snap. और ले गए और एकदम सो गए। फिर शाम आया, माँ यशोदा खेली है, ये नाई नहीं आया। फिर माँ यशोदा किसी प्रकार सोने का प्रयास किया, लेकिन किसी प्रकार उस रात को she was very very restless. कभी कभी इस साइड में, कभी कभी इस साइड में, कभी कभी पीठ पे, इस साइड उस साइड, कोई नींद नहीं आया। कोई नींद नहीं आया। फिर 12 बजे रात को उनको पता होने लगे कि बच्चा आने वाले हैं। और वो बिल्कुल अकेली है। वो छोटी लड़की नहीं है, वो ये वर्णन है कि छोटा सा इधर उधर व्हाइट स्वेट बाल भी आ रहा है इसका, और कभी नहीं हुआ बच्चा। मैं 40 साल थे प्रभु, हम 40 हमने देखा कि जब बच्चा होने वाला है ये सब जवान लड़की वो माता जी के घर पर जाते हैं, क्योंकि इसका बच्चा कभी नहीं हुआ, लेकिन माता जी के पास बहुत से बच्चे हुआ, वो सब कुछ जानती है, सो माता जी के पास जाते, लेकिन माँ यशोदा बिल्कुल अकेली है। उसके हृदय पुम 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 किसी प्रकार एनीवे एनी हाउ बच्चे का जन्म दिया, बहुत सुंदर पुत्री का, और सो गए और नहीं देखा कि हृदय से एक बहुत सुंदर श्याम वर्ण का लाला का जन्म हुआ। बहुत ही सुंदर श्याम वर्ण का लाला, जिसके घुंघरी वाले केश थे, बहुत सुंदर कमल के समान आंखें थे, बहुत सुंदर अंगुली, छोटी छोटी अंगुली, और ये एक अंगुली ये in the curls of his curls were is stuck, he can't get his finger out. उनका हाथ में और पाँव में बहुत सुंदर रेखाएं थे। बहुत सुंदर लाला का जन्म। लेकिन माँ यशोदा एकदम सो गए, क्योंकि पूरी रात में नींद नहीं है, अभी जन्म हुआ, whole trauma of childbirth happened, so she just fell asleep, she didn't know what happened. So कुछ समय हम वापस मथुरा जाएंगे, जज टूर करके वापस मथुरा जाएंगे। So मथुरा में एक बहुत क्रूर राजा था, कंस। और कंस का बहुत प्रिय बहन थी देवकी, और देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ बहुत धूमधाम से, और सब लोग बहुत प्रसन्न था देवकी और वसुदेव से।
और जब हाँ हाँ जब ये जा रहा था सड़क पे, सब लोग आया, देवकी वासुदेव की, देवकी वासुदेव की, देवकी वासुदेव की। अचानक एक आकाशवाणी आया, क्योंकि कंस वो आपका बहन का बेल घोड़ी गाड़ी चला रहा था, वो रथ को चला रहा था। क्योंकि in our Vedic Sanskriti, the girl, we can't understand nowadays, but in old, uh, uh, the girl had never lived outside the protection of her father. Now she's going to her husband's house and father-in-law's house. So she may feel, because that last day of because Indian weddings, they go on forever, for so many days. Last day is the Vidai. And I've seen in northern India, they draw it out completely. Even grown men are crying. Everyone is crying. The girl, she's embracing her mother. They're both crying. Finally, she sits in the car. She drives away. And then after a few minutes, they come back. And she jumps out of the car. She grabs her mother again, and everyone's crying. And they really, in northern, I don't know about here, but in northern, they draw it out, at least in Braj. In fact, I was telling the story, one lady in the audience, remembering her own wedding, she also began to cry. So they were going in the Bidai, and suddenly this voice came in the sky. Hans, you fool! You do not know that the eighth child of your sister will kill you! Atawalal Tera Kal. Atawalal Tera Kal. So Kan's तैयार होने लगे कि इसका बहन का सिर काटने वाले, इतने क्रूर था, इतने क्रूर असुर था कि वो उसका अपना बहन को सिर का काटने वाला था। उसका शादी के दिन पे ही कितना दुष्ट था कंस। और किसी प्रकार वसुदेव बीच में आए, नहीं 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 देखो, क्यों आपका भाई है, मृत्यु से ही मृत्यु होने वाले, जो भागवत गीता बताते हैं कि जो जन्म लिया वो मृत्यु होने वाले है, और जो मृत्यु हुई हुआ इसका जन्म होने वाले है। और बहुत से दर्शन का बात किया, लेकिन खान सुनने वाला नहीं था। तो फिर वसुदेव ने सोचा कि ठीक है, किसी प्रकार में बच्चे को बाद में देखेगी, लेकिन किसी प्रकार देवकी का रक्षा करना है। तो बताया कि देखो, ये आवाज बताए कि ये आत्मलाल का आपका काल है। और कौन बता सकते कि शायद लाला नहीं होगा और आठ लाला नहीं होगा, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई निश्चित नहीं है। और देखो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, सब लोग जानते हैं कि वसुदेव का जो वचन है वो सोने के समान है। कंस का वचन वो we don't want to talk about that. So मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कोई बच्चा होगा, मैं आपके पास ले आऊंगा और आप जो कुछ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। So कंस थोड़ा शांत हो गया और किसी प्रकार देवकी का रक्षा हो। So मैं अभी देवकी की रक्षा करूंगा, मैं बच्चे का कैसे रक्षा करूंगा भविष्य में देखेंगे। और हर साल एक बच्चा हुआ, और कंस इतने क्रूर था, इतने दुष्ट था कि माता जी के सामने ये बच्चा लेकर एक पत्थर पर उसको मार दिया। ऐसे 6 पुत्र हो गए इसी में। और ये 6 पुत्र था कि एक who was it? वसु था, no, let's see, no. Yeah, ये सब ये 6 पुत्र था, काम, क्रोध, लोभ, मद,
मत्सर्य, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य हमारा बहुत प्रिय मित्र है, तो हमारे हृदय में वास करते हैं। हाँ? और विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं इसके टीका में कि ये सब हमारा ठाकुर जी को प्रकट करने के लिए ये सब हमारा दिल से निकालने हैं। हाँ? सो काम क्रोध लोभ इत्यादि वो सब देवकी देवकी का वो प्रतीक है भक्ति, और काम से माया। हाँ? और देवकी का भाई है माया से, काम से, Maya से. So she was afraid of the material energy of the Lord. So all these things were cleared from her heart. फिर ये सत्व गर्भाया, वो था बलराम जी का एक अंश है, निबिन से महासंकर्षण। जब महासंकर्षण आया इनके गर्भ में, तो फिर ठाकुर जी ने योग माया को बुलाया, ये देखो बद्रे आपके लिए बहुत सुंदर कार्य है। बद्रे बताया क्योंकि वो बहुत हैवी काम को देने वाला था, तो he wanted to encourage her, so he said, oh, hey बद्रे। तो जब गुरु एक आज्ञा देते हैं, वो शक्ति भी देते हैं जिससे आपका पालन कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। तो हे बद्रे, ये गर्भ ले जाना है गोकुल में, और रोहिणी के गर्भ में जो बलराम बलराम स्थित है उसका लीन होने वाला है। आप ले जाने को, ये बहुत हैवी काम, क्योंकि महासंकर्षण उसके अनंत शेष के रूप में ये सारे ब्रह्मांड उसके सिर पर रहते हैं। तो बहुत हैवी काम है, इसलिए वो बद्रे। तो ये ले जाओ, और रोहिणी के गर्भ में जहाँ बलराम जी का है, ये प्रमुख बलराम है, उसका लीन होने वाला है। तो फिर सब लोग पता लगा कि देवकी का सातवां गर्भ नष्ट हो गया, फिर ये आठवां गर्भ आया। अब कंस बहुत चिंतित होने लगे, किसी प्रकार 6-7 से बचा, अभी आठवां गर्भ है। वो बिल्कुल कृष्ण भावना भावित थे, दिन रात कृष्ण के बारे में सोचते रहते थे। He's so Krishna conscious. Yeah, I'm envious. I wish I could think about Krishna दिन और रात। ऐसे ध्यान करते थे ठाकुर जी का कि इसका सेवक आया पानी के साथ, एक चांदी का ग्लास में और चांदी के थाली के ऊपर, और ये चांदी का थाली सब जो रंग था पूरे महल में वो उसका प्रतिबिंब हो रहा था, और कंस केवल देखा कि कोई रंगीन आ रहा है, और सब इसके सारे गार्ड्स को बताया ये दुष्ट है, कृष्ण है, मारो मारो इसको, मारो इसको। सेवक बता, अरे महाराज सिर्फ पानी लाया आपके लिए। आप लोग आते ब्रज में, हम परिक्रमा में ले जाते हैं, सब लोग पूछते कि प्रभु पानी कहाँ है। कंस पानी को देखकर वो कृष्ण देखते थे, इतने कृष्ण भावना भावित था कि कृष्ण ये पानी देखकर वो कृष्ण देखते थे। एक दिन इसका रसोईया आया, बहुत सुंदर थाली, बहुत सुंदर चांदी का कटोरी, और लाल वाला गाजर हलवा था, और टमाटो चटनी, गाजर हलवा, पीली वाली पूरी थे, सुंदर वाली हरी वाली पनीर सब्जी था, बहुत सुंदर सुंदर चीज था। उसके ऊपर थोड़ा सा फूल था, ग्लास था, केवल कंस देखे कि कोई रंगीन चित्र है, और वो के कार्स उसको मारो, दुष्ट कृष्ण आ रहा है, दुष्ट कृष्ण आ रहा है, मारो मारो। और ये रसोई बोले, अरे महाराज हम आपका खाना लाया। आज ये प्रोग्राम के बाद बहुत सुंदर प्रसाद होगा, शायद गुलाब जामुन होगा। जब आप गुलाब जामुन देखते
आप कृष्ण सोचते के बारे में सोचते हैं? सच बताओ। कृष्ण की याद आते। लेकिन खान इसके खाने को देखकर वो श्री कृष्ण की याद आ रहा था। इसके 2 पत्नियां थी, जरासंध का बेटी है। क्या नाम? अस्थिर प्राप्ति। हाँ, वो बहुत सुंदर साड़ी में पहनी थी, बहुत सुंदर मुकुट लगाया और बहुत सुंदर मेकअप किया और कंस के सामने आया और कंस बोला, गुज ये गार्ड्स गार्ड्स ये दूसरा है, दोनों कृष्ण बलदेव दोनों आए, मारो मारो। अरे महाराज हम क्या पति है। इतना कृष्ण भावना भावित है, I'm envious, you know. हाँ? सच बताओ, जब आपका पत्नी देखते कृष्ण देखते। But even एक पत्नी देखकर कृष्ण बलराम को देखा। He saw Krishna conscious. So comes, he's very nervous now. Atma Garbhe. So ठीक ये भाद्र मास का कृष्ण पक्ष अष्टमी, कृष्णाष्टमी के दिन, क्योंकि वो, I skipped a few things. Anyway, what happened? We have to go way back. ये सबसे पहले पुत्र आया, तो फिर हम कल्पना कर सकते ये सीन कि देवकी वो जानते हैं कि वो जानती है कि इसके पति देव का वचन का पालन करने है, वो ले जाएगा कंस के पास इसके सारी सबसे पहले पुत्र। तो हम देख सकते उसका आंख में कि मत जाओ, मत ले जाओ, मत जाओ। लेकिन कंस Vasudev, he has to fulfill his word. So he took that child from Devaki's hands and he went to Kams. And Kams देखा कि इतना noble, how noble this Vasudev is. He knows that I will kill the child, but he's still bringing his heart changed a little bit. He said, anyway, this is the first child. The Vishwavani said it was, Akashvani said it was 8th child. You take this one with you. So Vasudev, he went back with his first child, but he can't trust Kams. Kams में कोई विश्वास नहीं रख सकते हैं. He brought it back. Then Narad Muni came. Narad Muni आया क्योंकि Narad Muni सोचा कि ऐसा होगा तो फिर कृष्ण के जन्म बहुत देर होगा. वो सब जल्दी जल्दी कराना चाहते थे. So कंस को एकांत में बोला कि कंस, हमने देखा, हमने सुना, पूरे इंटरनेट में है कि ये अंधका वृष्णि एंड यादव का डायनेस्टी में ये सब देवी देवता जन्म ले रहे हैं. आपने सुना, नहीं देखा इंटरनेट में? हाँ, हाँ, हाँ. और ये देवी देवताओं आपको विश्वास नहीं कर सकते. हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, but maybe they count 1 2 3 4 5 6 7 8, or anywhere if they start, anyone could be the 8th. You don't know, you can't trust. ये देवी देवताओं का कोई विश्वास नहीं, बहुत चतुर है. किसी भी 8वां हो सकते हैं. So वसुदेव के संग से उसका हृदय चेंज हो गया. लेकिन उसका फिर उसके सारे मिनिस्टर के साथ बैठे थे और फिर ये सारे नो इसका मारो मारो मारो. So इसके दूसरे मिनिस्टर के साथ इसका दोबारा हृदय बदल किया. फिर वसुदेव और देवकी जेल में डाला. और ऐसे फिर और ये बच्चे को मारा. So 6 बार हो गया. I'm so excited hearing. I forgot things. So, जब ये 12 रात को आया देवकी और वसुदेव का जेल सेल में, अचानक ठाकुर जी प्रकट हो गया. Not in the normal way. He appeared with 4 arms, beautiful golden crown, beautiful gold pitambar dhoti, सब प्रकार का हीरा और पन्ना और सब प्रकार का भूषण, बहुत सुंदर 4 भुज वाले वसुदेव.
क्योंकि वो वासुदेव था जो चार भुज वाले है विष्णु, और कृष्ण वो द्विभुज है। सो मथुरा में ये चतुर्भुज वाले विष्णु का जन्म हुआ, लेकिन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का जन्म हुआ अभी वर्णन किया ब्रज में, गोकुल में। तो फिर ये दोनों प्रार्थना किए कि आप ये रूप चेंज करो, अगर खाम्स को पता है कि तुम भगवान है तो फिर आपको मरेगा। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, हम एक बच्चे के रूप में ले हो जाएंगे, फिर मुझे ले जाओ जमुना पार करके, और नंद का और यशोदा का ये श्रुति घर में जो बच्ची हुआ इसको बदल करो, और वापस ले आओ। सो ठीक उसी समय ये सब जितनी भी शाकल था वो सब खोल गए, और जितने भी दरवाजा था वो ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। हमने सोचा कि ये ऑटोमेटिक डोर समथिंग आधुनिक है, लेकिन 5000 साल पहले ऑटोमेटिक डोर था। ये सब ऑटोमेटिक ओपन हो गया, और कंस वासुदेव को लेकर वो चले गए। फिर जमुना के किनारे पे आया और पानी के अंदर, भाद्र मास मतलब ये दूसरे महीने का बरसात का दूसरा महीने है, बहुत हैवी करंट था और बहुत पानी था। तो वसुदेव ये पानी में ऊपर ऊपर ऊपर, ये बच्चा ऊपर he was holding up like this, कोई और सबको बताया, चिल्लाने लगे मेरा मेरा लाला ले लो, मेरा लाला ले लो, कोई लो, कोई मेरा लाला ले लो। तो ये घाट इसका नाम हो गया कोयला घाट। अभी ब्रज फाउंडेशन बहुत सुंदर व्यवस्था की है, बहुत सुंदर घाट है, बहुत सुंदर डायरामास भी है, ये सारी लीला का बहुत सुंदर हो गया। फिर पहले टूटी फूटी था, पर ब्रज फाउंडेशन बहुत सुंदर व्यवस्था की है वहाँ पर। तो फिर ये पानी और ऊपर आया तो ठाकुर जी इसका पाँव नीचे देखकर वो पानी का जमुना का स्पर्श किया, और जमुना वो बारिश के पानी से नहीं बढ़ रहा था, ये ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने का इच्छा से बढ़ रही थी जमुना, तो नीचे चले गए। और वासुदेव को लेकर, और अंधेरे में वो देख सकते हैं कि ये वासुदेव ये वासुदेव भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर में लीन हो गया, और ये बच्ची वो वापस लेके गए। ओके, फिनिश विद मथुरा लीला, बैक टू ब्रज। सो ये नाई चले गए, और माँ यशोदा का वो जन्म किया किसी प्रकार, और सो गए, और फिर वसुदेव आया और चले गए। फिर सुबह ये मोर का आवाज होने लगी, और ये नाई नींद टूट गए और देखे कि सवेरे है, ये पूरा रात हो गया, और मैं माँ यशोदा को अकेली रहने दी है। ओह नो, दौड़ती गए, श्रुति घर के अंदर आया और देखे कि माँ यशोदा के साइड में बहुत सुंदर श्याम वर्ण का लाला, जिसके बहुत सुंदर कमल के समान आंखें थे, घुंघरी वाले केश है, छोटे छोटे हाथ और अंगुली थे, और इसका अंगुली वो ये केश में फंसे है, इसका प्रयास कर रहा था इसको निकालने का। और ये नाई उछलाने लगी, और माँ यशोदा का नींद टूट गई, और देखे कि बहुत सुंदर नील कमल के समान लाला है इनके बगल में, और उसको उसके छाती पर लगाया, और देखा कि ओ कितना कोमल है, जैसा माखन, कितना सुंदर है, कितना सुंदर छोटी छोटी आंखें, छोटी छोटी अंगुली, कितना सुंदर है। और ये नाई दौड़ने लगी जहाँ ये गौशाला में नंद बाबा और ये सब भाई लोग वो ये गाय का दूध निकालना था। और ये नाई आया और सब लोग खड़े हो गया और प्रतीक्षा कर रहे क्या घोषणा है, कुछ घोषणा है। लेकिन ये नाई इतना
भावुक हो गया, वो उसके बात नहीं कर सकते। और ये भाई लोग बोले कि यशोदा का बच्चा हुआ, एक लड़का, और नंद बाबा बेहोश होने लगे। और नंद बाबा, ओ अभी ये सब गाय को चांदी और सोने के सुझाना है, कि एक भंडारा बनाना है, ये ब्राह्मण को बुलाना है, ये सब करने हैं। और ये सब भाई लोग बोले हम लोग करेंगे, तू जाओ, हम लोग यहाँ क्यों यहाँ है। हाँ, पहले जमाने में ये सब भाई लोग साथ साथ रहते थे, और सब लोग आपस में आदान प्रदान करते थे. Everybody helped one another. They said, you go see your child, we'll take care of all the arrangements. You go see your child. और नंद बाबा, इसका भाव लगभग जमीन पर नहीं आ रहा था, वो ये नंद के सागर में बह रहा था। और ये श्रुतिगर को आया, अंदर आया, लेकिन इसके पहले इसके जो बहन थी नंदिनी, वो सबसे पहले आया, और एक पर्दा लगाया, बख्शिश। फिर भी आप जाएंगे गोकुल में एक मंदिर है, आप जाएंगे, ओ ये बॉम्बे वाला, इनके पे बहुत पैसे है, फिर ये पर्दा लगाएगा कि पैसे दो और फिर दर्शन करो। तो 5000 साल से चल रहे। सो नंद महाराज जो सोने का हार था इसके गले में, वो नंदिनी को दे दिया, और नंदिनी ये पर्दा खोल दिया, और नंद बाबा के दर्शन हुआ। ये सुंदर सुंदर लाला, जैसा लंप ऑफ ब्लू मस्क, कितने सुंदर आंखें थे, कितने सुंदर केश, गुंगली वाले केश, कितने सुंदर अगली, और कितने ऑस्पिशियस मंगल रेखाएं हैं। नंद बाबा का एकदम आनंद में चले गए। फिर नंद बाबा इतना दान दिया सबको, सब ब्राह्मण को इतना दान दिया, इतना दान दिया, इतना दान दिया कि ये लेने वाले को सोचे कि हमें इतना दान नहीं ले सकते। अभी आपका कोई अनुभव है ऐसे? मेरे भी नहीं। हम जानते कि जन्माष्टमी आ रहे हैं, हमारा सबसे प्रिय डोनर के पास जाते हैं, हम बताते हैं कि ये जन्माष्टमी आने वाले है, आपका बहुत सुंदर दान होना चाहिए। और एक चेक लिखते हैं, लिफाफा में सील कर देते हैं, हम मंदिर में जाते, 1 और 2 जीरो मिसिंग। ऐसा अनुभव है। और ये देने वाला वो भी सोचते कि वो कृष्ण जन्माष्टमी अच्छा दान देने वाला है, लेकिन पिछले हफ्ते ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेड किए, ये बलून पेमेंट आने वाला है, वो भी कष्ट में। लेकिन नंद बाबा खुली आम से दान दिए, इतना दान दिया कि लेने वाला सोचे कि हम I don't deserve to take so much charity. But like a Braj, Braj is a magical place. It can happen like that in Braj. And all the Brishvasis heard. जब सब ब्रजवासी सुने कि नंद बाबा का बच्चा हुआ, सब लोग दौड़ते दौड़ते आया, और सब लोग नाचने लगे, और गाने लगे।